फ्रेंड्स, स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो। मैंने भी किया है। फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ अभी वही मैंने स्ट्रीम पे भी वही बोला था कि ऑल द बेस्ट टू देम एंड जितना भी है गिव इट ऑल एंड मतलब गेट इट होम, मतलब वही है अभी। बाकी एडविन और एस पावर तो मचा रहे हैं। वो तो मस्त ही खेल रहे हैं, बस बढ़िया ऐसे ही खेलते रहे, भी फाइनल्स में भी सेम मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करें एंड स्ट्रीम इंडिया। मैं आपको देखना चाहता हूँ स्टेज पे ना। अभी करेंगे, मेहनत करेंगे और क्या, बट मेरा भी है ड्रीम वापस से इंटरनेशनल जाना, रिप्रेजेंट करना। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। So who are those tier one companies and who, I mean, how do they pay them and on what basis? So basically there's semi-tier one and then comes your tier one companies and then uske upar comes the like big teams, like big franchises. So tier one players are usually paid about anywhere from about 60,000 to about 1.2, 1.3 lakh rupees a month plus your price pool, brand deals, everything. So a tier one player will be making about 2.5 lakh rupees a month, who is not at the very top, but who is not at the bottom as well, who plays consistently at the top level, but he's still not the best of the best. Aisa. And like all your big franchises like us, OG, Orangutan Soul, Godlike, Revenant, like there are big 5-6 big teams who are legacy teams, inki already fan bases hai. We might be paying our players in BGMI or in Free Fire about 2.5-3 lakhs a month. Plus they would be earning about another 1.5-2 lakhs from YouTube, another 2-3 lakhs from brand deals. So about 10-12 lakhs a month is what they would be earning from price pool, everything combined. In a good year, they would be making about 2 crores, 2.5 crores. 18, 19, 20-year-old would be making that. And all these players come from no background at all. Like they wouldn't even have a house. And they would be playing, like one of my players called as Ankit, he used to play on the signal below the street light. And he used to charge his phone from there, and today he might be earning about 1.5-2 crores a year. So that's how much money you can make and how you can change your life. Basically, because it's such a niche space to be in, but if you get to the very top, sky is the limit. Can you break Ankit's journey in a nutshell? Break down. I think a better person's journey to be is Jonathan's. I'll give you the two spectrums. One is like a star player called as Ankit Shukla, who's probably the best player in India currently. And उसके साथ भी और ऐसे लोग हैं comparison में. But the absolute superstar who might be the inspiration for almost all gamers who are watching this is Jonathan. He started from nowhere. Today he owns a Lamborghini, he owns a Bandra house in Bandra. He has about 8 million followers on Instagram. I think probably in the world is the most followed gaming celebrity. Indian gamer, same story, Bombay, born and brought up. Just by dominating month after month, year after year, he has built almost 100-200 crores worth of assets with him, all because of his skill. And I think he's 23 now. He'll turn 24. He'll turn 24 soon. But I think 23, 24 hai. And this is the kind of achievement someone can have at this age. So वैसा है कि everyone looks at these guys and thinks कि मैं भी ये कर सकता हूँ, जो कर सकते हैं, but not everyone can reach that level. You have to be really good, blessed, and you need to have the talent within you. Plus you need like organizations like us and so many other people to nurture you and get you up there. So when we signed Ankit, no one knew him. No one knew him was a semi-tier one player who had just performed well in one tournament, one off tournament, the third party, and we picked him up, and within 4 years he's at this stage. So it all depends on how you get picked, आपका performance कैसा है, how consistent you are, and there's such a fickle industry जहाँ पर someone who's up top can go to the bottom in one tournament. So you are only as good as your last performance. In sports, that's what people say. In esports, so it is even more cutthroat. क्रिकेट में तो 11 लोग होते हैं ना, तो आप इधर उधर कर सकते हो, बट इसमें 4 लोग होते हैं, तो अगर आप नहीं परफॉर्म करते तो यू आर लाइक 25% ऑफ योर टीम. So if your performance goes down, the team goes down, then you go out of the team, and once you go out of the team, it is very difficult to come back in. It's a very fickle industry and very difficult industry to be in, but जो लोग में हाई मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो लोग का रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, who practice so much and who have that clear goal कि I want to be at the very top in esports, and इंडिया आज तक कई इंटरनेशनल esports टूर्नामेंट में गोल्ड नहीं जीता है, सेकंड आया है हमेशा मतलब एक ही बार सेकंड आए, बाकी थर्ड आए, फिफ्थ आए, एट्थ आए, हम 18th आए लास्ट ईयर आउट ऑफ 64 टीम्स. मतलब इतना खराब परफॉर्मेंस रहा है बाहर जाके, बिकॉज इंडिया में वी रियली प्ले वेल, बट बाहर जाके वी आर स्टिल नॉट वी आर क्लियरिंग फॉर दैट गोल्ड, एंड दैट वाज द विजन बिहाइंड मी स्टार्टिंग ओरेंगुटन. इट वाज नॉट एनीथिंग एल्स, बिकॉज कि इंडिया का बाहर गेमिंग में लोग मजाक उड़ाते हैं. जैसे हम हमारे दोस्तों को नूब बोलते हैं ना, गेमिंग टर्म होता है कि यार तुझे कुछ आता नहीं है तो नूब है, तो इंडियंस को बाहर नूब बोलते हैं, बाहर के प्लेयर्स. And that was something which hit me really well because I used to play a lot of Counter Strike online also, and हम आते थे सर्वर पे और हमारा एक्सेंट एक तो इंडियन एकदम प्योर होता है, हम आते थे तो बोलते हैं नूब आ गए, मतलब वो ऐसा आपको समझता है कि ये लोग हमको मानते नहीं है कंपटीशन. दैट वाज द विजन बिहाइंड मी स्टार्टिंग ओरेंगुटन वेरी अर्ली,
and it was not to make money, it was not anything else. The only vision was कि I want to win India gold in an international tournament in any game. We went so many times and I still couldn't win it, but कभी ना कभी एक दिन आएगा where at least me or someone from my community will go and get that glory, and it will be like the 83 moment. Just like cricket became so big after 1983, when a esports gold comes in at the Olympics or the Commonwealth or any international tournament, that is when I think esports will really go so big that the numbers you see now for players running will ideally be about 30-40 times more, because that is what they are worth. Amazing. He's in different jersey right now. Who's that? Hey Johnny, what's up? I'm good, bro. How are you? Hey Johnny, I miss you. Same. Let's 1v1. उसने भी छोड़ दिया ब्रो मेरे जैसे दोनों से. I don't play. I'm living life right now, bro. Yeah, we both together. You too, bro. You living life right No, now. he's still playing. You still playing? Yeah. For who? No, he's dominating. Okay, nothing. Yeah. In what? Classic. I miss you, bro. Same. Which car you take? What? Which car you take? Car? I drive Ferrari in PUBG. Nah, he's asking cause he has Lambo in real life. I drive BMW M2. I take M5 competition now. Oh yeah? Ooh. Very much. You like the sound? The exhaust sound? Yeah. He's become a car collector now. Oh, that's nice. Yeah. I saw that. Come on, let's see again. The globals. How- To these noobs. 2019. We have to meet up, bro. Yeah, we should meet up. ये इंडिया आ रहा था. He was coming to India, but फिर वो कैंसिल कर दिया. But अभी फिर से आएगा ये. तो तब मैंने बोला कि अपन मीटअप करते हैं. India. Yeah, anytime you come India, just let me know. Yeah, let's meet up. Which city I should go? Delhi or Mumbai first? You should come to Mumbai, then we take you to all the cities. All the city. Yeah. But I really wanted to go Kashmir and the desert area. What was the name? In India? The desert area? Rajasthan. Rajasthan, right? Rajasthan, right? Rajasthan. Rajasthan. He's from Rajasthan. Oh, you from Rajasthan? Take me there, bro. Take me there. Yeah, there are desert everywhere. I know. No water. No water? Yeah. चल मिलते हैं. He was sleeping, so Okay. yeah. Okay, I'll meet you soon, okay? Bye. Miss you, brother. चल सो जा. Soon. वन थिंग, एक चीज होती है हर स्पोर्ट में, ई स्पोर्ट्स में, कि कोई भी भारत से अगर ऊपर जाता है इंटरनेशनल स्टेज पे, पहली बार अगर कोई कर लेता है ना, फिर रास्ता खुल जाता है बाकी लोगों के लिए. डू यू थिंक आपने रास्ता खोल दिया है कई ऐसे नए युवा प्लेयर्स के लिए जो आज से ग्राइंड करना शुरू करेंगे आपको देखने के बाद? आई मीन आई वुड से एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग ने ऐसे स्टार्ट किया था. ये जो प्लेयर्स के अगेंस्ट हम लोग आज खेल रहे हैं, मैं तो इनको जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं तब से इन लोग को ग्लोबल स्टेज पे देखता आ रहा हूँ. एक प्लेयर यहाँ पे आयाला, वो टीम केसों में खेलता था PMCO टाइप्स टूर्नामेंट्स में. तो आई गेस उनके साथ में स्टेज शेयर करना ही बहुत लंबी जर्नी रही है. और ये कैसे हो पाई है? मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी. अगर स्टार्टिंग मुझे कोई आइडल बना देता, मैं नहीं कर पाता. एंड इट्स लाइक अगर 1 साल में था, 2 साल में था, नहीं होती चीज़ें, टाइम लेती हैं. एंड जो टीम्स इंडिया में भी हमारे अगेंस्ट कम्पीट करती हैं एंड हमसे अच्छा भी काफ़ी बार परफॉर्म करती हैं. ओमेगा की टीम देख लो, नकुल की टीम देख लो, इवन रेवेलेंट एक्सपार्क भी आप देख सकते हो कि इतने सारे अपना जो रीजन है उसमें मेटा चेंज हुआ, तो कितने अडेप्ट करने के जो एफर्ट्स है, जो एक्सपेरिमेंट्स है, वो इतने डेस्परेटली सारी ऑक्स के साइड से देखने को मिले, विच इज लाइक कमेंडेबल. कि अगर आप लोग हमको टक्कर दे सकते हो ऑब्वियसली इंडिया में, क्योंकि हम लोग भी जीत कर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया, हम लोग भी 6th है, तो 5 टीम्स हमसे भी ऊपर थी. तो अगर हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं तो a lot of Indian teams can. एंड अगर आप स्पोर्ट्स अभी तक आए भी नहीं हो स्पोर्ट्स में, स्टिल इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड आपको पता है कि आप हार नहीं मानोगे, क्योंकि इट्स लाइक कि यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं देता है कि आप इतना कर लो पढ़ाई की, जैसे कि सिलेबस कवर कर लिया तो एग्जाम में उतना ही आने वाला है. इट्स लाइक वेरी अनसर्टेन. बट अगर आप खुद पे भरोसा रखो तो टाइम के साथ में चीजें डेफिनेटली वर्क हो सकती हैं. डेफिनेटली, आई थिंक द वाइज वर्ड्स आरू. गॉड लाइक बहुत लंबे समय के बाद चैंपियन बनी और आप उस रोस्टर का हिस्सा थे और आप चैंपियन बने और इतना ज्यादा स्पेशल हुआ कि सीधा EWC 2026 के लिए आप लोग क्वालिफाई हुए. तो ओवरऑल आपके टीम में किस तरीके की वाइब है? हाउ स्पेशल इट इज फॉर यू गाइस? वेरी वेरी स्पेशल है, क्योंकि 2025 जब EWC था उसमें हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग होपफुली ये बारी, मैं पंक एडमिनो, जॉनी सिंह, वो वक्त खेला करती, हम लोग का था कि हम ये बारी होपफुली EWC जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट मेक इट. दिस टाइम 2026 गॉड्स प्लान, भगवान कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही करता है. अगर ये साल नहीं तो अगले साल नहीं तो उसके अगले साल हमेशा हो ही जाता है. तो यह प्यार सबके लिए बहुत स्पेशल है. कंपटीशन बहुत ज्यादा है. और अब कंपटीशन की बात करें तो पावर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए डोमेस्टिक सर्किट में आप लोगों ने खेला, काफी अलग लेवल का कंपटीशन होता है. सो डोमेस्टिक सर्किट, अगर हम इंडिया की लॉबी की बात करें और EWC 2026 की लॉबी की बात करें, तो कितना डिफरेंस है वहां के और यहाँ के कंपटीशन में? डिफरेंस जितना मुझे फील हुआ है, लाइक
मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एक तो इंडियन प्लेयर्स गॉड गिफ्टेड है क्लोज रेंज के लिए, एंड ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल वाले प्लेयर्स ट्रेसिंग वगैरह वाइज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज वाइज गॉड गिफ्टेड है। बाकी क्लोज रेंज भी अच्छा है, बट हम लोग को थोड़ा कैचअप करना होगा ऑफ कोर्स ट्रेसिंग वगैरह में। और बाकी वहाँ पे जो टीम गेम होता है, क्योंकि बेसिकली जैसे इंडिया में अच्छे प्लेयर्स हैं, स्लग हो गया, ये सब हो गया, वैसे वहां पे हर एक टीम में एक एक प्लेयर वैसा ही है, बहुत ही अच्छा खेलते हैं सब। तो वहां अगर उनको फ्री फॉर में हराना होता है तो आप लोग को इंडिविजुअल ब्रिलियंस में आप बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। उन लोग को आपको डिफीट करने के लिए टीम गेम ही लगेगा, जहाँ पे आप लोग आइसोलेट कर रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो। और इंडिया में थोड़ा बहुत इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गेम चल जाता है, ये डिफरेंस है। और बाकी बाहर वाले प्लेयर्स का तरीका खेलने का, वे, IQ, बाकी सारी चीजें, गेम सेंस यूज करना, यूटिलाइज करना, स्पिन पॉइंट, लाइक माइनर ऑफ एरर आप करोगे वहां पे, इट विल कॉस्ट यू अगेन। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कोई मैसेज चाहता हूं आपकी तरफ से EWC इंडिया के फैंस को जो आपके लिए रूट कर रहे हैं इस समय पे। गाइस, मैं बोलूंगा कीप सपोर्टिंग अस, विल ट्राई आवर बेस्ट एंड होपफुली आप लोग थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और हम लोग वो एक्सपेक्टेशंस मैच करने की पूरी ट्राई करेंगे। और बाकी आप लोग को शायद से इतनी डिसअपॉइंटमेंट भी देखने नहीं मिलेगी, हम लोग अच्छा ही करेंगे, नो वरीज। ये प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है यार, इतना प्रैक्टिस कर रहा है, हम लोग को पता है वैल्यू क्या है। इससे पहले कोई टीम को प्रैक्टिस वगैरह करने का माहौल नहीं मिला, बट हम लोग जो EWC 26 में है टीम्स, उनके अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्क्रिम्स खेल लिए, तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी वो स्क्रिम्स में इतना भी सीरियस नहीं था, हम लोग भी बस लॉबी समझने के लिए ही खेलते थे कि सामने वाली टीम्स का अप्रोच क्या होता है, क्या पेस होता है और उनका काउंटर क्या हो सकता है। क्योंकि फन में खेलते हैं जो भी है, लेकिन जब सीरियस खेलना होता है, लाइक फन वे में जब आप खेल रहे हो, तो सीरियस वाला गेम थोड़ा बहुत आ ही जाता है, वो डिफ्लेक्ट कर ही जाता है। तो यप, उस चीजों का थोड़ा ध्यान में रखेंगे एंड विल डू आवर बेस्ट एंड कर लेंगे बच्चा बोलो सबको। तो यार देखो, मैंने जब वाइपर नेम रखा था तब तो यार मैं बहुत छोटा था, लाइक 12 या कुछ 13 साल का था, नहीं 13, हाँ आई गेस 13 इयर्स का था कुछ। तो वो टाइम में मेरे पास उतना दिमाग नहीं था, तो लाइक मुझे मतलब मैं वो सेंस में रखा था कि मैं बंदे वाइप करता हूँ, वाइपर वो वाला वाइपर। बट मैं सोचा कि वो W को V से स्विच कर लेता हूँ, बट बंदे सोचते कि मैं वो स्नेक वाइपर की वजह से अपना नाम रखा, बट वैसा नहीं है, मैं वो W वाले वाइपर की वजह से रखा था, बट विद V। हम दो दोस्त लोग ने मिलकर कॉम्पी की शुरुआत किए थे, बट उसकी एज बहुत कम थी, तो वो मतलब एंटर नहीं हो पाया था स्पोर्ट्स में, उसके पेरेंट्स अलाउ भी नहीं किए थे। तो उसने मुझे नाम दिया था कि तू हेक्टर नाम से खेल और रिप्रेजेंट कर करके, तो बस तब से ही नाम ये लगा हुआ है। तो मैंने अपना नाम पिक करा था, मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा था, और मतलब वो उस टाइम पे कूल लग रहा था बहुत नेम, इसलिए मैंने रखा था। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है बहुत ज़्यादा कि अच्छा रीज़न कि कुछ रखा हो उसकी वजह से, हाँ ऐसे ही रखा था मैंने, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा था, मेरे को अच्छा लगा इसलिए पिक कर लिया मैंने। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब नहीं किया वो आज पछता रहे हैं।